Yeah, I have a very, there's a story that I think probably everyone also doesn't know. I was a hormonal 18-year-old who had very little money, and I went to a tea shop looking for a cheap old issue of Playboy. And I ended up finding my first ever issue of Cinema. And that's how I was introduced to Cinema. And after that I started to read Cinema. And Cinema kind of became my window. Before I discovered Sight and Sound, and before I discovered that I could go to the British Council Library and read more about cinema, Cinema was my only window to cinema from across the world. And I had no idea who I was till that Panch incident happened. Panch was banned, and we got to know that somebody from Cinefan wants to see Panch. And Aruna came all alone. We kept a screening for her and Ajans in, I think, it was a Dimple Studio. And she saw Panch and she said, I want to take the film. And the film was banned at that time, and we were all like, we were very depressed for last, I think, 1 year the film was banned. It was 1 year to, and she took the film and she showed the film, and that was the only public screening of Panch. Only public screening of Panch. And it kind of changed course. Aruna, for me, became the, I call her the godmother of cinema. In the sense, for me, when I travel to festivals and after Sanjeev Red, people know somebody, everyone knows is Aruna Vasudevan, actually. And I have connected with so many people. And so many discoveries were to be made about Aruna. I keep discovering things. I found out much later that she was one of the founding mothers of the Pipreski Award that we give out. Her role in taking cinema from Asia and the Arab world everywhere, and people actually do listen to her recommendation. And somebody, I think a lot of people, film festivals from abroad, when they came to India, they would ask her about who are the filmmakers to watch out for. And they would come, and suddenly, out of blue, I would get these calls that we want to see your film. And I don't know how they know about my film, and how do they know that, and all this comes from Aruna. And that discovery is also made much later, because Aruna would never say these things. And slowly this year in Busan, when I was there, and I saw how much love Aruna has, and she played such a major role in creating Busan Film Festival. I had no idea. You know, and that's the role that she has played. And she's somebody who should, I feel that deserves so many more honors. And I'm so glad that the first Ocean Lifetime Cinema Achievement Award is being given to her. There's so much more that she deserves, and we need her so much more. She's kind of trying to take a back seat, and I hope that she stays there, because I know personally how much she has done and how many bridges she has built between countries and between cultures. And we need that kind of passion. That now festival almost is popping up in every city, everywhere, and there's a kind of a cinema culture growing. But when we were in university in Delhi, the place to go to watch movies was either IFFI, or we would go to various embassies when they would hold screening before Cinefan came in, and it kind of opened the world. And I'm very honored that I'm standing right here, while you've been given the award, and I'm very happy to see it happening. And thank you so much, Naveen. नहीं, बहुत अच्छा था, और अच्छा सब्जेक्ट था कि यार हिंदुस्तान में जो 1.25 अरब की आबादी है, उसमें से फ़िल्म देखने वाले कितने हैं। क्या ये पॉसिबल है कि जो हमारा एक फ़िल्म फेस्टिवल के दौरान जो एंथू रहता है यूथ में या लोगों में फ़िल्म या सिनेमा देखने के लिए, क्या हम उस एंथू को 365 दिन कैरी कर सकते हैं? क्या हमारे पास उतना माता है इंडिया में? तो है, लेकिन पहले हमें भी उन तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे अभी तक ये होता है कि अगर जो सिनेमा है जो ज़्यादा देखा जाता है, उसमें ये है कि वो जब हम बचपन में स्कूल या कॉलेज में थे, तो वो पहली फ़िल्म कौन सी थी जो हमने अपने पैसों से देखी थी, है ना? तो अगर हमें वो ऑब्वियसली कोई कमर्शियल फ़िल्म होगी जिसकी हाइप मिली होगी, तो अगर हम वही पैरेलल सिनेमा या ऑफबीट सिनेमा या
कोई भी सिनेमा, पैरेलल ऑफबीट के बजाय कोई भी सिनेमा जो हिंदुस्तान से रिलेटेड है उसकी फिल्म हम अपने पैसों से देखें, या यूथ को भी वो करें, प्रोत्साहन दें कि वो मसान जैसी फिल्म को सबसे पहले देखें अपने पैसों से, है ना। या कोई भी जो ये दो दूनी चार हो गई, गुलाल हो गई, इस तरह की फिल्मों के लिए खुद अपने आप पैसा देके फिल्में देखें उसी क्रेज़ के साथ जैसे किसी भी सुपरस्टार की फिल्म देखी जाती है। तो इस तरह की अगर हम चीज़ें करेंगे तो पॉसिबल है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रेवती ने अपनी एक फ़िल्म में सलमान भाई से काम कराया था, है ना, और उन्होंने बहुत मज़े से बहुत अच्छे से उस सीरियस जोन में एक्ट किया था। तो जो ऑफबीट सिनेमा वाले और जो स्टार्स हैं उनके बीच में, जो पॉपुलर लोग हैं उनके बीच में फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बनेगी तो हर तरह का सिनेमा बनेगा और हम कामयाब हो सकते हैं इन 1.25 अरब लोगों तक पहुंचने तक। क्योंकि आप ऐसे फेस्टिवल्स में जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन क्या रहती है, कैसी फिल्में दिखाई जाए, मैं बिल्कुल ही ऑफबीट हूँ क्योंकि नहीं, हर तरह की फिल्में आनी चाहिए, हर तरह का एक्सप्रेशन सामने आना चाहिए, तभी रेंज बढ़ेगी, तभी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तभी हमारी जो है कि चीज़ों के बियॉन्ड जाने की हमारी कुव्वत है वो भी बढ़ेगी, नया सिनेमा सामने आएगा। आज हर इंसान एक कहानी है, तो हर इंसान पे मतलब अगर हम 1.25 अरब हैं तो 1.25 अरब कहानियाँ हैं हमारे पास, बस वो देखने का नज़रिया डेवलप करना है, किसके ऊपर बनाना है, कहाँ बनाना है। तो जो पुराने एम्फेसिस हैं, पुरानी इनसिक्योरिटीज़ है, जब हम उनसे टूट के आगे बढ़ेंगे तो नई तरह की वैरायटीज़ और जो खुलापन है वो सामने आएगा, एक्सप्रेशन सामने आएगा और हर तरह की फिल्में बनेंगी। इतनी फिल्मों की बात हो चुकी है कि फ्रीडम है सिनेमा में आजकल, तो कोई एक फिल्म जो आपको याद आती है कि आपने उस टाइम देखी और अभी तक आपके दिमाग में है ऐसे फेस्टिवल्स में कमेंट्सी, एक रशियन फिल्म है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। कि मुझे लगा कि एक बच्चे की फिल्म के ऊपर, एक बच्चे की कहानी के ऊपर डायरेक्टर ने इतना खर्चा किया है, इतना ट्रीटमेंट के साथ फिल्माया है उस फिल्म को, कमेंट्सी। वो तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस फिल्म से। तो मुझे लगा यार ये तो कमाल है, एक बच्चे के ऊपर जिसे कोई नहीं जानता, 13 साल के बच्चे की स्टोरी है जो हिटलर से लड़ना चाहता है। तो बड़ा प्यारा सब्जेक्ट था वो, और उसने आर्मी की ड्रेस सिलवा रखी है, जूते तक तैयार है, गन तैयार है उसको, लेकिन लोग हंसते हैं उसके ऊपर कि हिटलर से लड़ने चला है, उसे पता ही नहीं हिटलर कौन है। तो बड़ी प्यारी फिल्म थी वो, और उस बच्चे की जर्नी थी पूरी फिल्म में। और वो फिल्म मुझे अभी तक पहली फिल्म थी वो मेरी, वर्ल्ड सिनेमा जिसे बोलते हैं उसके समझ में, और आज तक वो छपी हुई है। अमूमन देखा जाए तो एक असली हीरो फिल्म का राइटर ही होता है। अगर राइटर ही अच्छा ना लिखे या फिर कोई किसी चीज़ पर जाए कि ये कवर कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इसका बिजनेस क्या होगा, तो वो एक सेफ साइड खेलता है। तो एक्टर्स की कितनी ड्यूटी बनती है उन फिल्मों को करना या ना करना? नहीं, वो तो है ही यार। अब लेकिन यहाँ पे अभाव है, अच्छे राइटर्स का तो अकाल पड़ा हुआ है यहाँ पे। गिनती के 8-10 हैं जो उंगलियों पे गिन सकते हो आप। बाकी फिल्में बनती हैं यहाँ पे 300 के करीब। तो 300 में हर राइटर अगर 8 ही राइटर हैं तो समझ लो 8 ही कहानियाँ लिखी गई है ना। तो 300 का क्या होगा। तो बेहतर है कि हम जो नए राइटर्स हैं उनको सपोर्ट करें, उनको अच्छे से उनको पेमेंट करें। राइटर्स की पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है बस। अगर राइटर नहीं लिख रहा है तो फिल्में नहीं बनेंगी। आप किसी भी ईगो में हो लीजिए, कोई भी हो, आप प्रोड्यूसर हो, बड़े डायरेक्टर हो, बड़े सुपरस्टार हो, अगर आप राइटर्स को पेमेंट नहीं करेंगे और असली पेमेंट उनकी रिस्पेक्ट उनकी पेमेंट से होगी, तो पेमेंट करेंगे तो अच्छा लिखेंगे। थैंक यू। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.